India's once diverse food landscape has significantly changed due to increasing agricultural land issues. The ground beneath the country is changing, and farmers feel it first. When across India's fields, sowing becomes a guess, harvest becomes a risk, and the weather becomes the biggest uncertainty of all. Agriculture, our oldest, most essential livelihood, is now on the climate front lines. Welcome to the episode 7 of Rooting for the Grassroots, where we uncover how climate change is reshaping rural India and how young climate champions from the National Youth Climate Consortium are stepping up to protect our food systems. In Konkan's rain-soaked belt, the signs are unmistakable. Here, nearly 40% of local jobs demand green skills, but barely half that number of youth actually have them. An entire generation stands ready, but unequipped to protect the land they depend upon. On the other hand, the Alfonso mango belt is collapsing, with yields crashing by 35 to 50% last season alone. Maharashtra's state action plan has marked Konkan as highly climate vulnerable, with flash floods, soil erosion and unpredictable rainfall rewriting life for entire districts like Ratnagiri and Sindhudurg. Meanwhile, on the other side of the western coast, another crisis takes root, not in rainfall, but deep beneath the ground. More than 50% of Gujarat's land now suffers from degradation. And in 23 talukas, the groundwater is so overexploited that wells now hit rock instead of water. But the crisis doesn't end with scarcity, it reaches the soil itself. Decades of chemical-intensive agriculture have left Gujarat among the top 5 salt-affected states, where rising salinity makes crops struggle to survive. More than half of the soil is now deficient in zinc and key micronutrients, weakening both yield and nutrition value. From Alfonso orchards to affected farmlands, the struggle is shared, but so is the determination to fight back. Our climate champions are proving that solutions grow where commitment does. Let's now move to the stories from the grassroots. હું છું NYCC ક્લાઇમેટ ચેમ્પિયન ગુજરાતથી। मेरा नाम जय उपाध्याय है और मैं गुजरात के छोटे से शहर हिम्मतनगर से आता हूँ और मेरी जलवायु परिवर्तन पे काम करने की शुरुआत मेरे स्कूल टाइम से ही हो गई थी, जब मैं 10वीं कक्षा में था तब से। और यही जर्नी मेरी ग्रेजुएशन में भी मेरे साथ रही। इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन में काम किया था, जिसमें हमने 10 गांव का सर्वे किया था। 10 गांव में हम 100 फार्मर से मिले थे और हमें उन्हें बताया था कि वो किस तरीके से अपने जो फार्म पे सॉइल है उसको सही से मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर के बजाय ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करें। क्योंकि मैम अभी गुजरात में बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं और जो सॉइल है और ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी मैम दिन ब दिन उसका जो स्तर है वो नीचा जा रहा है और उसी की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूट हो रही है और ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है। तो अब समय आ गया है कि हम फार्मर को ये बताएं कि सॉइल उनके लिए कितनी जरूरी है और ग्राउंड वाटर तो उनकी क्वालिटी भी कितनी अच्छी होनी जरूरी है। तो ये कुछ रीजन है जिनके कारण हम फार्मर से जुड़ना चाह रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के युवा फार्मिंग से दूर भाग रहे हैं, मतलब वो फार्मिंग करना नहीं चाह रहे। तो मैं फार्मर के साथ और युवाओं के साथ जुड़ के उन्हें बताना चाहूंगा कि फार्मिंग एक सस्टेनेबल बिजनेस है और उनके जरिए हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी हम गुणवत्तापूर्ण जो पोषक तत्व वाला जो आहार है वो दे सकते हैं। सभी टेक्नोलॉजी को मैं फार्मर के साथ जुड़ के, युवाओं के साथ जुड़ के उनको एम्पावर करना चाहूंगा और अपने इस अभियान में NYCC के थ्रू मैं उन्हें अपने साथ जुड़ना चाहूंगा। NYCC के साथ जुड़ के सॉइल पे और ग्राउंड वाटर पे काम करना चाहता हूँ और NYCC के थ्रू अपने युवाओं की एक टीम बनाऊं जिनके जरिए मैं सैटेलाइट रिलेटेड जो जितने भी सॉल्यूशन है वो फार्मर को प्रोवाइड करूं और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ड्रोन दीदी, तो मैं ये चाहूंगा कि अपने क्षेत्र की जो महिला है वो ड्रोन दीदी प्रोग्राम में जुड़े और उन्हें भी मैं महिलाओं को भी एम्पावर करूं और उन्हें मैं स्वावलंबी बनाऊं और खुद एम्पावर होके दूसरे फार्मरों को भी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं महिलाओं को अपने साथ इस अभियान में जुड़ूं और उनको भी एम्पावर करूं। मेरा एक विजन है कि मैं 2047 के लिए हमारे देश को एक ऐसा स्मार्ट एग्रीकल्चर विलेज मॉडल तैयार करके दूं जो आने वाले साल में उसको रिप्रेजेंट करे। एग्रीकल्चर स्मार्ट विलेज एक ऐसा विलेज होगा जिसमें जितने भी फार्मर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जो फार्मर है टेक्निकल संसाधनों का उपयोग करेंगे और अपने फार्मिंग बिजनेस को टेक्नोलॉजी के थ्रू सस्टेनेबल बनाएंगे।
मी NYCC क्लायमेट चॅम्पियन महाराष्ट्रामधून येतोय. मैं शुभम गुरव, मैं महाराष्ट्र से सांगली जिले से आता हूँ. पिछले 5 साल से मैं लगातार पर्यावरण बदलाव पे काम करता आ रहा हूँ. हमने 2020 में यूथ फॉर नेचर इंडिया फाउंडेशन के तहत हमारे पर्यावरण जर्नी की न्यू रची और उसके बाद हम लगातार क्लाइमेट लिटरेसी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं. हम पिछले 5 साल से ग्रामीण में जाके बच्चों को क्लाइमेट लिटरेसी, एनवायरमेंटल लिटरेसी क्या है, उसकी बेसिक चीजें उनको सिखाते हैं. महाराष्ट्र में अभी तो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है कि अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जो कि सॉइल का एक्सप्लॉयटेशन हो. एक्चुअली मोटिवेशन, सबसे बढ़िया मोटिवेशन है होता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हमारे खुद के ऊपर प्रभाव डालता है, तब हमें पता चलता है कि ये कितनी बड़ी समस्या. इसके वजह से मैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम करना चाहता हूँ और ये मुझे प्रोत्साहन देता रहता है कि एग्रीकल्चर सस्टेन रहेगा तो हम सब सस्टेनेबल जीवन बिताएंगे. ये जो कैपिटलिज्म लाइफस्टाइल है वो पर्यावरण प्रति कितनी घातक है उनको समझ में आना बहुत जरूरी है. सो इसके लिए समाज में से कुछ युवाओं को आगे आके काम करने के लिए जरूरत है कि उन यूथ्स को सस्टेनेबल लाइफ कैसे ग्लोरीफाई कर सके और उस कैपिटलिज्म लाइफस्टाइल पे कैसे हावी हो सके. इसके लिए युवाओं को आगे आके सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक ब्रांड बनाना चाहिए और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें जो जी रहे हैं उस कम्युनिटी को साथ में आकर काम करना चाहिए. तो NYCC क्लाइमेट चैंपियन फेलोशिप को जुड़ने का मुख्य हेतु मेरा ये था कि मैं जब लगातार 5 साल से कोकण रीजन में जा रहा था, उधर हम काम कर रहे थे, तो हमें एक बहुत बड़ी समस्या दिखी कि कोकण रीजन से बहुत सारा यूथ मुंबई, पुणे ऐसे सारे मेट्रो सिटीज में माइग्रेट हो रहा था. वो माइग्रेट होने के बाद उधर का फॉरेस्ट वो बाहर के लोगों को बेच देते थे, मतलब, और वो उधर आके मोनोकल्चर सिस्टम पूरा लागू कर देते. मैंगो हुआ, कैशू प्लांटेशन हो गया, तो उधर बायोडाइवर्सिटी थ्रेट बहुत सारा तैयार हुआ है. सो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कोकण रीजन के जो यूथ माइग्रेशन हो रहा है उसको ग्रीन स्किल और क्लाइमेट फाइनेंस के तहत सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऑप्शंस देकर एक ग्रीन स्किल, रीजन स्पेसिफिक ग्रीन स्किल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहते हैं, जिससे वो यूथ उधर रह के अपना सस्टेनेबल लाइवलीहुड तैयार कर सके और उधर रहने की चाह ला सके. As we speak, our climate champion Shubham is building a green skill future for the Konkan. From launching a green skills workshop with YFN for India Foundation, Konkan Krishi Vidyapeeth, and ISRO to mobilizing over 60 youth, he is now piloting bamboo-based livelihoods, natural farming, and ecotourism skill programs across the region in collaboration with Triple Trust and State Agriculture Department. He has also kickstarted an internship program to map green entrepreneurs and is working towards Konkan's first government-recognized course on climate-smart farming and agroforestry. Meanwhile, in Gujarat, our climate champion Jai has developed an AI-driven innovation, Farm Sarthi. It is an interactive platform for equipping more than 500 farmers with tools that are monitoring crop health, soil moisture, and crop stress, while providing satellite-based farm services to farmers, helping generate a farm assessment report. हमारे जैसा काम करने वाले बहुत लोग हमारे आसपास है. जब वो हमारे जैसा काम करते हैं तो हमें इंस्पायर मिलता है और हम काम करते हुए किधर अटक जाए, किधर काम करते हुए हमें हेल्प लगे, पार्टनरशिप लगे, कोलैबोरेशन लगे. NYCC ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उधर हमें ये सब चीज़ें मिल सकती है. अगर NYCC मुझे सपोर्ट करती है तो मैं आने वाले समय में ये मॉडल आने वाले 5 साल में तैयार करके दे सकता हूँ. To follow along on such stories of resilience and climate action happening across India, be sure to like, share and subscribe and find more resources linked below. We are rooting for the grassroots. Are you?